लेक्चर 10 स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल के बारे में। तो आपने याद रखना होगा इसमें देयर आर थ्री बेसिक्स या देयर आर थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टेबल्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो आपने याद रखा द टेबल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेबल या देयर आर थ्री बेसिस on which the tables can be classified, that is on the basis of purpose, on the basis of originality, on the basis of construction. According to each of these bases, statisticians have classified tables as in following chart. ठीक है ना। तो आपने याद रखना kinds of table में आपने याद रखना according to purpose we have two types of table that, ठीक है ना। तो आपने याद रखना there are three bases on which the tables can be classified, that is on the basis of purpose, on the basis of originality, on the basis of construction. पहला क्या है? According to purpose. According to purpose, the table can be general purpose table and special purpose table. On the basis of purpose, the table can be general purpose table and special purpose table. According to originality, the table can be original table or derived table. ठीक है ना। ये आपने याद रखना इसमें the according to originality, the table can be original table or derived table. According to construction, the table can be sample table or complex table. The sample table is also called as one-way table. ठीक है ना, वन वे टेबल। तो आपने देखा तो आपने अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन द टेबल कैन बी सैम्पल टेबल और कम्प्लेक्स टेबल। तो आपने याद रखा इसमें देयर आर थ्री बेसिस ऑन विच द टेबल्स कैन बी क्लासिफाइड, दैट इज ऑन द बेस ऑफ पर्पस, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस या ऑन द बेस ऑफ पर्पस द टेबल्स कैन बी जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। On the basis of originality, the table can be original table or derived table. On the basis of construction, yeah, according to construction, yeah, on the basis of construction, the table can be sample or complex table. Sample table is also called as one-way table. The complex table is further subdivided into double table, triple table, and manifold table. ठीक है ना। तो आपने याद रखना है according to purpose we have general purpose table and special purpose table. According to originality we have original table and derived table. According to construction we have sample table and complex table. The complex table is further divided into three groups, that is double table, triple table, or manifold table. The double table is also called a two-way table. The triple table is called as थ्री-वे टेबल। manifold table is उसके बाद है manifold table। ठीक है ना। तो अपने complex table is further subdivided into double table, triple table and manifold table। ये आपने याद रखना होगा। पहले हम बात करेंगे टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेबल, दैट इज जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। द जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। द जनरल पर्पस टेबल does not serve any specific purpose। ठीक है ना। तो आपने देखा the general purpose table does not serve any specific purpose or specific problem under consideration. Such tables are just data bank। ठीक है ना। Such tables are just data bank for the use of researchers for their various studies। ठीक है ना। तो आपने इसमें सवाल बनता है which kind of table serves एज ए, तो आपने देखा विच काइंड ऑफ टेबल सर्व्स एज ए डेटा बैंक फॉर द रिसर्चर्स। ठीक है ना। तो आपने देखा विच टाइप ऑफ टेबल सर्व्स एज ए डेटा बैंक फॉर रिसर्चर्स फॉर देयर स्टडीज। इसका सही जो है जनरल पर्पस टेबल। दिस मीन्स जनरल पर्पस टेबल सर्व्स एज ए डेटा बैंक। सवाल सर विच टाइप ऑफ टेबल सर्व्स एज ए डेटा बैंक फॉर रिसर्चर्स। इसका सही जवाब है सवाल सर विच टाइप ऑफ टेबल सर्व्स एज ए डेटा बैंक फॉर रिसर्च स्टडीज। इसका सही जो है जनरल पर्पस टेबल। द जनरल पर्पस टेबल आर जनरली अटैच्ड टू सम ऑफिशियल रिपोर्ट्स like census report of India. These are also called as reference table। ठीक है ना। तो आपने याद रखना the general table is also called as इसका reference table। तो आपने याद रखना the general purpose table is also called as reference table। तो आपने याद रखना इसमें पहले what is general table, इसमें the general table is for general purpose। ठीक है ना। the general purpose table is that table which is of general use and the general purpose table does not serve any specific purpose or specific problem under consideration. The general purpose table are just the data bank for the researchers to study। ठीक है ना, for their various studies. The general purpose table are generally attached to some official reports। सवाल बनता है which types of table are attached to some official reports। बहुत ही क्वेश्चन है which types of table are attached to some official reports। इसका सही जवाब है general purpose table like census reports of India। The general purpose table are also called as इसका reference table। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना इसमें जनरल पर्पस टेबल में आपने याद रखना इसमें द जनरल टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर टेबल। तो आपने याद रखना
द जनरल टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर टेबल और रेफरेंस टेबल। तो आपने द जनरल पर्पस टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर टेबल और रेफरेंस टेबल। इन द जनरल पर्पस टेबल आर ऑफ जनरल यूज, नॉट मीन्ड फॉर स्पेशल पर्पस। ये आपने याद रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल सेंसस, गिव द सॉल्वेंट्स है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ जनरल टेबल, गिव द एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस टेबल, इसमें सेंसस। गिव द एग्जाम्पल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, गिव द एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस टेबल, इसका इसमें सेंसस। उसके बाद है स्पेशल पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल किसको हम कहते हैं? द स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। तो आपने याद रखना है द स्पेशल पर्पस टेबल is that table which is prepared with some specific purpose in mind. Generally, the special purpose table are small tables limited to problem under consideration. ठीक है ना? तो आपने कहा the special purpose table is that table which is prepared with some specific purpose in mind. Generally, the special purpose table are small tables limited to problem under consideration. In special purpose table, data are presented in the form of result of analysis. तो आपने याद रखना है the special purpose table are presented in the form of result of analysis. That is why the special purpose table are also called as summary table. ठीक है ना? ये आपने फैक्ट याद रखूंगा। The special purpose table are small tables and are limited to problem under consideration. And in special purpose table, the data are presented in the form of result of analysis. ठीक है ना? तो आपने देखा the special purpose table are presented in the form of result of analysis. That is why the special purpose table are also called as summary table. तो आपने the special purpose table are also called as, इसका इसमें summary table, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the special purpose table are also called as, इसका summary table, बहुत इंपॉर्टेंट, the special purpose table are also called as summary table. तो आपने the special purpose table are also called as summary table. The special purpose table are derived from general table. तो आपने याद रखना है the special purpose table are derived from which table? इसका general table. The special purpose table serves for special purpose. ये आपने याद रखूंगा। The special purpose table is useful for calculation of analytical statistics like ratio, percentage, etc. तो आपने याद रखना which type of table is useful for the calculation of analytical statistics like ratio, percentage, इसका सही है special purpose table. तो आपने याद रखना इसमें सवाल बनता है which type of table is useful for calculation of analytical statistics like ratio, percentage, इसका सही जवाब है special purpose table. For example, calculating ratio of male is to female, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है on the basis of originality. On the basis of originality, the tables can be classified, that's original table and derived table. तो आपने याद रखना on the basis of originality that there are two types of tables, that is original table and derived table. An original table is that in which data are presented in the same form and manner in which they are collected. ठीक है ना? तो आपने याद रखना an original table is that table in which data are presented in the same form and manner in which they are collected. तो आपने याद रखना what is original table? इसके लिए an original table is that table in which data are presented in the same form and manner in which they are collected. ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद क्या है derived table. A derived table is that in which data are not presented in the form or manner in which they are collected. ठीक है ना? तो आपने सुना what is original table? An original table is that in which data are presented in the same form or manner in which, तो आपने सुना an original table is that in which, तो आपने an original table is that table in which data are presented in the same form or manner in which they are collected, while as the derived table is that in which data are not presented in the form or manner in which they are collected. Instead, the data are first converted into ratios or percentage and then presented. ठीक है ना? तो आपने याद रखना derived table में आपने याद रखना a derived table is that in which data are not presented in the form or manner in which they are collected. Instead, in derived tables, the data are first converted into ratios or percentage and then presented. ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना होगा इसमें on the basis of originality, original table. Original table is also called as primary table. तो आपने the original table is also called as primary table. In original table, the data is presented in the form in which it is collected. Derived table is also called as secondary table. The derived table is also called as secondary table. And the derived table is converted into any form as per requirement. ठीक है ना? तो आपने the derived table is converted into any form as per requirement. For example, limited columns as required. For example, limited columns as required. As per construction, the table can be simple table and complex table. आपने याद रखना इसमें
द ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन, उसके बाद है ऑन द बेस ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्ट्रक्शन द टेबल आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सैंपल टेबल एंड कम्प्लेक्स टेबल। सैंपल टेबल एंड कम्प्लेक्स टेबल। द सैंपल टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन वे टेबल। The sample table is also called as one-way table. A sample table is that which shows only one characteristic of the data. सवाल बनता है, the table which shows only one characteristic of the data is called as sample table or one-way table. The table 2 below is an example. For example, class and number of students. ठीक है ना, ये आपने it shows the number of students in the college. उसके बाद है complex table. The complex table is that table which shows more than one characteristic of the data. तो आपने याद रखना इसमें what is sample table, इसका सही है a sample table is that which shows only one characteristic of the data, while as the complex table is that table which shows more than one characteristic of the data. On the basis of characteristics shown that these tables may be further classified into, ठीक है ना, on the basis of characteristics shown, the complex table are further divided into double table, triple table and manifold table. ठीक है ना, ये आपने सॉल्व कर सकते हैं। नेम द 3 टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स टेबल, इसका सही जवाब है डबल टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनफोल्ड टेबल। ये आपने याद रखना होगा। नेम 3 टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स टेबल, इसका सही जवाब है डबल टेबल, ट्रिपल टेबल एंड मैनफोल्ड टेबल। पहले हम बात करेंगे डबल टेबल के बारे में। द डबल टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड टू वे टेबल। The double table is also called as, इसका है two-way table. A two-way table is that table which shows two characteristics of the data. सवाल बनता है the type of complex table, बहुत ही मुश्किल, the type of complex table which shows two characteristics of the data is called as, इसका है double table or two-way table. The double, तो आपने याद रखना, the complex table can be double table, triple table or manifold table. Yeah, the complex table is further divided into double table, triple table and manifold table. The double table is also called as two-way table. The two-way table or double table is that which shows two characteristics of the data. For example, table 3 showing the number of students in different class according to their sec in two-way table. For example, classes, उसके बाद है boys and girls, उसके बाद है total. उसके बाद है triple table. A triple table is that which shows 3 characteristics of the data. तो आपने याद रखना, a triple table is that which shows 3 characteristics of the data. For example, table 4 shows the number of students in the college according to class, sec and habitation. For example, rural, urban, total. ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है manifold table. Manifold table. A manifold table is one which shows more than 3 characteristics of the data. A manifold table is that table which shows more than 3 characteristics of the data. For example, table 5 shows number of students in the college according to their sec, class, habitation and marital status. ये हो गया manifold की एग्जाम्पल। तो आपने याद रखना इसमें as per construction on the basis of construction characteristics, sample table is also called as one-way table. The data presented in sample table is based on one characteristic only. ठीक है ना, ये आपने याद रखना। उसके बाद है complex table. Complex table में क्या आता है, more than one attribute is presented simultaneously. ठीक है ना, तो आपने कहा the type of table in which more than one attribute is presented simultaneously is called a complex table. The complex table can be double, triple or manifold table. Double table is also called two-way table. That is, the data is, तो आपने in double table the data is tabulated on the basis of two interrelated characteristics. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। In double table the data is tabulated on the basis of two interrelated characteristics. For example, faculty, उसके बाद है boys and girls. उसके बाद आपने याद रखना इसमें three-way table is also called triple table. ठीक है ना, data is tabulated on the basis of 3 interrelated characteristics. For example, girls, boys, semester 1, semester 2. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है manifold table. The manifold table is also called as higher order table. बहुत ही प्रश्न है। The manifold table is also called as higher order table. In manifold table the data is tabulated on the basis of large number of interrelated characteristics. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स और कर्व्स इज कॉल्ड, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो आपने व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसका जो है द प्रेजेंटेशन ऑफ, बहुत ही क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में हम बात करते हैं. द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा on graph paper in the form of lines or curves is called as graphical representation. बहुत ही मतलब what is graphical representation of data, इसका सही जवाब है
The presentation of statistical data on graph paper in the form of lines or curves is called graphical representation of data. What are the merits of graphical representation of data? इसका सही है the graphical representation of data simplifies the complex data. The graphical representation of data simplifies complex data. The graphical representation of data helps in forecasting. The graphical representation of data helps in forecasting. The graphical representation of data helps in variation in the values of variable. ठीक है ना, ये आपने याद रखना है. The graphical representation of data predicts variations in the values of variable. तो आपने कहा the graphical representation of data predicts variation in values of variable. उसके बाद है demerits of graphical representation of data. पहला क्या डिमेरिट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का? प्रिसाइज वैल्यू आर नॉट शोन. तो आपने कहा प्रिसाइज वैल्यूज आर नॉट शोन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो आपने कहा प्रिसाइज वैल्यूज आर नॉट शोन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. दूसरा है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मे गिव रॉन्ग प्रिडिक्शन. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मे गिव रॉन्ग प्रिडिक्शन. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा is difficult to interpret. The graphical representation of data is difficult to interpret. अब हम बात करेंगे ग्राफ वर्सेस डायग्राम के बारे में. The graph paper is required. तो आपने in graph the graph paper is required. In diagram the diagram can be drawn on plain paper. ठीक है ना, तो आपने कहा the graph is drawn on graph paper while as diagram can be drawn on plain paper. The graph represents mathematical relationship. The diagram does not represent any relationship. तो आपने the graph represents mathematical relationship whereas the diagram does not represent any relationship. By the help of graph, median, mode, etc. can be determined. By the help of graph, median, mode, etc. can be determined. While as the median, mode, etc. cannot be determined through diagram. Procedure to construct a graph. Procedure to construct a graph. इसके लिए आपने याद रखना है इसमें Procedure to construct a graph. ग्राफ आपने डालना होगा, उसमें आपने लिखना होगा राइट साइड में पहले Q1 उसके बाद इस साइड में Q2 यानी Q1 राइट साइड में, Q2 लेफ्ट साइड में, Q4 राइट साइड में और Q3 लेफ्ट साइड में. एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज आपने याद रखना होगा. द वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द वाई एक्सीज ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड इसको ऑर्डिनेट. बहुत इंपॉर्टेंट. द वाई एक्सीज ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड इसको ऑर्डिनेट. द वाई एक्सीज ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड इसको ऑर्डिनेट. द एक्स एक्सीज ऑफ ए ग्राफ इज कॉल्ड इसका सब एबकिसा या एब्सिसा. द बहुत इंपॉर्टेंट. द एक्स एक्सीज ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड इसको एब्सिसा. The x-axis of the graph is called abscissa. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. The x-axis of the graph is called abscissa. The y-axis of the graph is called इसको ordinate. उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ. पहला क्या हमें अगर हमें ग्राफ बनाना होगा तो पहले क्या चाहिए हमें? स्केल. दूसरा क्या है? हेडिंग. पहला क्या है ग्राफ बनाने के लिए? अप्रोप्रिएट स्केल. उसके बाद है हेडिंग. उसके बाद है प्रॉपर इंडिकेशंस. उसके बाद है फॉलोस बेस लाइन. उसके बाद है इंडेक्स. उसके बाद है डेटा टेबल. उसके बाद है ड्राइंग लाइन और कर्व. उसके बाद है पेपर साइज. उसके बाद है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. तो इसमें आपने याद रखना होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं. पहले लाइन है हमें स्केल, अप्रोप्रिएट स्केल. उसके बाद लिखनी है हेडिंग यानी सूटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग. उसके बाद है प्रॉपर इंडिकेशंस. मोर देन वन कर्व प्रोबेबली डिफरेंशिएटेड. ठीक है ना, तो आपने प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड. तो आपने याद रखना मोर देन वन कर्व प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड. तो आपने पहले याद रखना ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या है? स्केल है. उसके बाद है हेडिंग. उसके बाद है प्रॉपर इंडिकेशन. उसके बाद है फॉलोस बेस लाइन. तो आपने द फॉलोस बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसका किंकर्ड लाइन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द फॉलोस बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंकर्ड लाइन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फॉलोस बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसका किंकर्ड लाइन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपने फॉलोस बेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज इसका सही जवाब है फॉलोस बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसका सही जवाब है. तो आपने याद उसमें टू जॉइन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू टॉप ऑन वाई एक्सीज. ठीक है ना,
तो आपने याद रखना इसमें टू जॉइन पॉइंट्स ऑन, तो आपने याद रखना कंस्ट्रक्शन में टू जॉइन पॉइंट्स ऑफ ए ग्राफ गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन एक्स एक्सिस वाइल एज बॉटम टू टॉप ऑन वाई एक्सिस। तो आपने रखना टू जॉइन पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ go from left to right on x-axis and to join points of the graph go from bottom to top on y-axis। तो आपने लिखा to join points on a graph go from left to right। तो आपने लिखा to join points, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, to join points on a graph go from left to right on x-axis while as go from bottom to top on y-axis। क्वेश्चन है the false baseline बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड किंकर्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका जो है किंकर्ड लाइन। तो आपने द फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंकर्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट, द फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंकर्ड लाइन। द फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज किंकर्ड लाइन। द फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज, इसको किंकर्ड लाइन। ए फॉल्स लाइन लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट इज कॉल्ड एज किंकर्ड लाइन। तो आपने याद रखना फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज किंकर्ड लाइन, ये आपने याद रखना फैक्ट। तो आपने याद रखना इसमें फॉल्स बेस लाइन इज ऑल्सो नोन एज किंकर्ड लाइन। ए false baseline lies on x-axis it is called as kinkard line and if false line lies on y-axis it is called as false baseline। तो आपने याद रखना false baseline is also known as kinkard line। तो आपने इसमें याद रखूंगा false baseline, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the false baseline which lies on x-axis is called as kinkard line। तो आपने a false baseline, तो आपने a false line, तो आपने a false line lies on x-axis it is called as kinkard line। if false lies, तो आपने a false line lies on x-axis it is called as kinkard line while as a false line lies on y-axis it is called as false baseline। तो आपने याद रखना if false line lies on x-axis it is called as kinkard line while as when the false line lies on y-axis it is called as false baseline। तो आपने याद रखना फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना। if false baseline lies on x-axis it is called as kinkard line। if, तो आपने याद रखना if false line, तो आपने if false line lies on x-axis it is called as kinkard line while as when the false line lies on y-axis it is called as false baseline। तो आपने याद रखना इसमें उसके बाद फॉल्स बेस लाइन के बाद, ठीक है ना, इंडेक्स में क्या है, लाइन्स एंड कलर्स। इंडेक्स में आपने याद रखना लाइन्स एंड कलर्स। तो आपने याद रखना पहला क्या है, स्केल। ग्राफ के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें लानी है एक अप्रोप्रिएट स्केल। उसके बाद है हेडिंग शुड बी सूटेबल एंड प्रिसाइज। प्रॉपर इंडिकेशन दैट इज मोर देन 1 करो शुड बी यूज्ड एंड प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड। फॉल्स बेस लाइन वाई एक्सिस, फॉल्स बेस लाइन वाई एक्सिस, फॉल्स लाइन ऑन एक्स एक्सिस किंकर्ड लाइन। इंडेक्स डिपिक्ट्स लाइन्स एंड कलर्स। इंडेक्स में क्या लिखना है, लाइन्स एंड कलर्स। डेटा टेबल, फुल नॉलेज ऑफ डेटा। डेटा टेबल में क्या हमें दिखना है, फुल नॉलेज ऑफ डेटा। उसके बाद है ड्राइंग लाइन और करू, ड्राइंग लाइन और करू। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा। टू ज्वाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, टू ज्वाइन the point on the graph go from left to right on x axis and bottom to top on y axis. Paper size, appropriate size of graph paper, appropriate size of graph paper from left to right on x axis and from bottom to top on y axis। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, the frequency distribution is representing using graphs is called frequency diagram। तो आपने देखा the frequency distribution is represented using graphs is called as, इसका सही जवाब है, तो आपने याद रखना इसमें the frequency diagram में आपने the frequency distribution is represented using graphs is called as frequency diagram। तो आपने देखा the frequency distribution, तो आपने when frequency, तो आपने देखा तो आपने याद रखना इसमें क्वेश्चन मार्क्स है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन यूजिंग ग्राफ्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डायग्राम। तो आपने याद रखना द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड, तो आपने द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डायग्राम। हिस्टोग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम।
तो आपने हिस्टोग्राम में आपने द हिस्टोग्राम इज ए 2 डायमेंशनल डायग्राम सेट ऑफ रेक्टेंगल विद बेस एट द इंटरवल्स बिटवीन क्लास बाउंड्रीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इसमें द हिस्टोग्राम क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है ना। हिस्टोग्राम क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एट इंटरवल्स। तो आपने देखा हिस्टोग्राम क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एज द इंटरवल्स बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। हिस्टोग्राम इज नॉट ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट डाटा, ये आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द हिस्टोग्राम इज नॉट ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट डाटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम इज नॉट ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट डाटा, ये आपने याद रखना होगा। इसमें आपने याद रखना होगा हिस्टोग्राम के लिए, इन केस ऑफ इक्वल क्लास द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल। इन हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लासेस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल वेरीज। तो आपने याद रखना इसमें फैक्ट, इन केस ऑफ इक्वल, तो आपने इन हिस्टोग्राम, तो आपने याद रखना इन हिस्टोग्राम व्हेन देयर आर इक्वल क्लासेस, तो आपने रखा इन हिस्टोग्राम व्हेन देयर आर इक्वल क्लासेस द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो आपने रखा इन केस ऑफ इक्वल क्लासेस द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल इन हिस्टोग्राम। तो आपने फैक्ट याद रखा, इन केस ऑफ इक्वल क्लासेस द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल इन हिस्टोग्राम, व्हाइल एज इन केस ऑफ अनइक्वल क्लासेस द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वेरीज। तो आपने याद रखना इसमें, इन पहले आपने रखा इन हिस्टोग्राम व्हेन द क्लास आर इक्वल द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल, व्हाइल एज इन हिस्टोग्राम when there are unequal classes the width of rectangle varies, ये आपने याद रखना होगा। हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डाटा नॉट इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा, ये आपने याद रखना। द हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डाटा नॉट इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा। तो आपने याद रखना इसमें, हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डाटा नॉट इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा। तो आपने याद रखना द हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली इन केस ऑफ continuous data and not in case of discrete data. In case of discrete data, in case of discrete data, draw points and join and start from zero, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। पहले आपने याद रखना द हिस्टोग्राम इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा, द हिस्टोग्राम इज ओनली यूज्ड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डाटा, while as in case of discrete data, इन केस, तो आपने इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा ड्रॉ पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा ड्रॉ पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम एंड स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये आपने याद रखना होगा। तो इसमें आपने याद रखना इक्वल क्लास में मार्क्स 0 to 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20, 5 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, 10 to 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, 15 to 20, number of students 40, 20 to 25, number of students 50। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना होगा। उसके बाद है अनइक्वल क्लास में। अनइक्वल क्लास में क्या है, अनइक्वल क्लास में आपने याद रखना होगा इसमें 0 to 5, 5 to 15, 15 to 20, 20 to 30, 30 to 35, दिस मीन्स अनइक्वल क्लास। इक्वल क्लास में क्या होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, दिस मीन्स 5 गैप रहती हैं इक्वल क्लास में, जबकि अनइक्वल क्लास में गैप रहती हैं बहुत ज़्यादा, देयर 0 to 5, 5 to 15, 15 to 20, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो इसके लिए आपने फैक्ट याद रखना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज यूज्ड, तो आपने याद रखना। हाँ, इससे पहले हम बात करेंगे बार डायग्राम के बारे में। द बार्स विद आर्बिट्रेरी विड्थ आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड बार डायग्राम। तो आपने व्हाट इज बार डायग्राम, इसका समझ में द बार्स विद आर्बिट्रेरी विड्थ आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड एज बार डायग्राम। व्हाट इज बार डायग्राम, इसका समझ में द बार्स विद आर्बिट्रेरी विड्थ आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड एज बार डायग्राम। तो आपने द बार डायग्राम, व्हाट इज बार डायग्राम, इसका समझ में द बार डायग्राम इज the bars with arbitrary width are drawn। तो अपने what is bar diagram, इसका में the bars with arbitrary width are drawn to represent the data। तो आपने इसमें बार डायग्राम में क्या होता है, the bars with arbitrary width are drawn to represent the data, इसको हम बार डायग्राम कहते हैं। the bar diagram is drawn for both discrete and continuous data। तो आपने इसमें the bar diagram, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। the bar diagram is drawn for both discrete and continuous data, while as the histogram is drawn only for the continuous data। In bar diagram some space has to be left between consecutive bases। तो आपने
इन बार डायग्राम सम स्पेस हैज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन कंजिक्यूटिव बार्स। तो आपने कहा इन बार डायग्राम सम स्पेस हैज़ टू बी लेफ्ट बिटवीन कंजिक्यूटिव बार्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन JNK फ्रॉम 1997 टू 2004। ठीक है ना, इसके लिए हम बार डायग्राम बनाएंगे। तो उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करो। तो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करो। तो आपने बोला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका सही जवाब है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करो। The frequency polygon is constructed by joining the midpoints of the frequencies presented using rectangles, that is histograms। ठीक है ना, तो आपने the frequency polygon is constructed by joining the midpoints of the frequencies presented using rectangles। तो आपने कहा frequency polygon में क्या होता है, the frequency polygon is constructed by joining the midpoints of the frequencies। द फ्रीक्वेंसी, तो आपने द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कॉन्स्ट्रक्टेड। तो पहले आपने द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ऑल्सो कॉल्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करो। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कॉन्स्ट्रक्टेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल्स। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर बोथ डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज। ये भी आपने द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर बोथ डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज। तो आपने लाइक बार डायग्राम, तो आपने लाइक बार डायग्राम द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर बोथ डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस सीरीज। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने फैक्ट याद रखा, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट डाटा बाय यूजिंग स्केल which while as in frequency। तो आपने इसमें frequency polygon is used for both continuous and discrete data। तो आपने the frequency polygon is used for both continuous and discrete data by using scale, while as in frequency curve freehand is used। तो आपने याद रखना फैक्ट in frequency polygon the scale is used, while as in frequency curve the freehand is used। तो आपने याद रखना फैक्ट the intersection of less than a given point or greater than a given point gives the median। ठीक है ना, तो आपने द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन, तो आपने याद रखना ओगायो पॉइंट। ठीक है ना, तो आपने द इंटरसेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है द इंटरसेक्शन, ये आपने याद रखना इसमें फैक्ट द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओगायो पॉइंट एंड ग्रेटर देन ओगायो पॉइंट गिव्स द मीडियन। तो आपने रखा द इंटरसेक्शन ऑफ, तो आपने ये फैक्ट याद रखना इसमें द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओगायो पॉइंट एंड ग्रेटर देन ओगायो पॉइंट गिव्स द मिड पॉइंट या मीडियन। तो आपने रखा द इंटरसेक्शन ऑफ, तो आपने रखा इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो आपने याद रखा फैक्ट इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओगायो पॉइंट एंड ग्रेटर देन ओगायो पॉइंट गिव्स द मीडियन। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी करो। फ्रीक्वेंसी करो, फ्रीक्वेंसी करो में आपने याद रखना होगा फ्रीक्वेंसी करो में द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड। ये आपने याद रखना है द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड। द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग स्मूथ फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू द क्लोजली एसोसिएटेड पॉइंट्स। द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग स्मूथ फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू द क्लोजली एसोसिएटेड पॉइंट्स। तो आपने याद रखना है द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग स्मूथ फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू द क्लोजली एसोसिएटेड पॉइंट्स। तो आपने याद रखना फ्रीक्वेंसी कर्व में द फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑब्टेन्ड by drawing smooth freehand curve passing through the closely associated points. The frequency curve can also be drawn for both discrete as well as continuous series। तो आपने याद रखना the frequency curve can also be drawn for both discrete as well as continuous series। तो आपने the frequency curve is obtained by drawing smooth freehand curve passing through the closely associated points। The frequency curve can be drawn for both discrete as well as continuous series। टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑन द बेस ऑफ शेप। ठीक है ना, ये आपने याद रखा टाइप्स ऑफ कर्व, द टाइप्स ऑफ कर्व ऑन द बेस ऑफ, ठीक है ना, ये आपने रखा द टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑन द बेस ऑफ शेप। पहला है नॉर्मल कर्व। द नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक कर्व और बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने ये फैक्ट याद रखा द नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक कर्व
और बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने याद रखना द नॉर्मल कर्व, तो आपने द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक कर्व और बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व, बहुत द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक कर्व, बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक कर्व, बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है यू शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व भी हैं, ठीक है ना। तो आपने पहले याद होगा टाइप्स ऑफ कर्व ऑन द बेस ऑफ शेप, दैट इज नॉर्मल कर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक कर्व, बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद दूसरा है यू शेप्ड कर्व। उसके बाद है पॉजिटिव स्क्यूड कर्व, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। उसके बाद है नेगेटिव स्क्यूड कर्व। उसके बाद है बाई मॉडल कर्व। उसके बाद है जे शेप्ड कर्व। उसके बाद है रिवर्स जे शेप्ड कर्व। उसके बाद है मिक्सड कर्व जिसको हम मल्टी मॉडल कर्व भी कहते हैं। तो आपने याद रखना फैक्ट इसमें टाइप्स ऑफ कर्व ऑन द बेस ऑफ शेप, टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑन द बेस ऑफ शेप। पहला क्या है नॉर्मल कर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेल कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है यू शेप्ड कर्व। उसके बाद है पॉजिटिव स्क्यूड कर्व, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व। उसके बाद है नेगेटिव स्क्यूड कर्व, नेगेटिव स्क्यूड कर्व। उसके बाद है बाई मॉडल कर्व। उसके बाद है बाई मॉडल कर्व। उसके बाद है जे शेप्ड कर्व। उसके बाद है जे शेप्ड कर्व। उसके बाद है रिवर्स जे शेप्ड कर्व, रिवर्स जे शेप्ड कर्व। उसके बाद है मिक्सड कर्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी मॉडल कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिक्सड फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मिक्सड फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी मॉडल कर्व। ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना इसमें द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओगायो, ओगायो कर्व एंड ग्रेटर देन ओगायो। तो आपने याद रखना द इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ओगायो एंड ग्रेटर देन ओगायो गिव्स द मीडियन, ठीक है ना। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है ट्रू क्लास इंटरवल्स, ट्रू क्लास इंटरवल्स। देयर इज नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव क्लासेस। तो आपने व्हाट इज ट्रू क्लास इंटरवल, तो आपने याद रखना ट्रू क्लास इंटरवल द, तो आपने ट्रू क्लासेस पहला क्या है क्लास बाउंड्रीज, पहला क्या है क्लास बाउंड्रीज। व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यू इट इज कॉल्ड एज क्लास बाउंड्रीज। तो आपने देखा व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यू इट इज कॉल्ड एज क्लास बाउंड्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यू, तो आपने व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यूज इट इज कॉल्ड एज क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद है क्लास साइज, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ। When subtract upper limit minus lower limit it is called as क्लास साइज और लेंथ और विड्थ। तो आपने याद रखना इसमें क्लास साइज, तो आपने पहले याद रखना व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यूज इट इज कॉल्ड एज क्लास बाउंड्रीज। क्लास साइज या क्लास लेंथ या क्लास विड्थ किसके बराबर होती है? व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अपर लिमिट with the lower limit, when we subtract the upper limit with lower limit it is called as class length और क्लास साइज और क्लास विड्थ। ये आपने याद रखना होगा ट्रू क्लास में, ठीक है ना। पहले आपने व्हाट इज ए ट्रू क्लास, इसका द टाइप ऑफ क्लास व्हेन देयर इज नो गैप। तो आपने याद रखना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज, तो आपने याद रखना ट्रू क्लास इंटरवल किसको हम कहते हैं? व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव क्लास, upper limit of each class is equal to lower limit of the succeeding class, it is called as true class interval। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। when there is, बहुत ही what is true class and what is true class, इसका फिर when there is no gap between the successive class the type of class is called a true class। that is in true class intervals upper limit of each class is equal to the lower limit of succeeding class। तो आपने याद रखना है what is true class interval, इसका समय when there is no gap between the, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू क्लास इंटरवल क्या होता है? when there is no gap between the successive classes। बहुत ट्रू क्लास में क्या होता है? when there is no gap, तो अपने को what is true class, इसमें when there is no gap between the successive classes that is the upper limit of each class is equal to the lower limit of succeeding class, the class is called as true class। for example age and frequency। age में हम बात करेंगे 10 to 27, 20 to 38, 30 to 49, ठीक है ना, 40 to 50, that is 10। this means there is no gap between the successive class, that is upper limit of each class, upper limit of each class is equal to the lower limit of succeeding class। ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है नॉन ट्रू क्लास। नॉन ट्रू क्लास, नॉन ट्रू क्लास में आपने याद रखना उसमें नॉन ट्रू क्लास में क्या होता है? द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सेसिव क्लास। तो आपने याद रखना पहले, तो आपने पहले याद रखना होगा फैक्ट व्हाट इज ट्रू क्लास, इसका समय व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव क्लासेस दैट इज द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास
तो आपने याद रखना है व्हेन देयर इज नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव क्लास। तो आपने व्हाट इज ट्रू क्लास, इसका समय व्हेन अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सीडिंग क्लास द टाइप ऑफ क्लास इज कॉल्ड ट्रू क्लास, दैट इज देयर इज नो गैप बिटवीन द सक्सेसिव क्लास इन ट्रू क्लास। वाइल एज नॉन ट्रू क्लास किसको हम कहते हैं, व्हेन द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सेसिव क्लास द क्लास इज कॉल्ड नॉन ट्रू क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ सक्सेसिव क्लास द क्लास इज कॉल्ड नॉन ट्रू क्लास। फॉर एग्जाम्पल वेट and number of persons, weight is said number of persons 30 to 39 5, उसके बाद 40 to 49 10, 50 to 59 20, 60 to 69 25. This means there is not, so there is the upper limit is not equal, the upper limit of each class is not equal to the lower limit of successive class, इसको हम कहते हैं नॉन ट्रू क्लास। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। नॉन ट्रू क्लास में एक फैक्ट याद रखना, क्लास लिमिट व्हेन देयर इज नो कंक्रीट बाउंड्रीज इट्स कॉल्ड क्लास लिमिट। ठीक है ना, तो आपने रखना व्हेन देयर इज नो कंक्रीट बाउंड्रीज इट्स कॉल्ड एज क्लास लिमिट्स। तो आपने पहले याद रखना व्हेन देयर इज कंप्लीटली डिमार्केड वैल्यू इट्स कॉल्ड क्लास बाउंड्री, व्हाइल एज व्हेन देयर इज नो कंक्रीट बाउंड्रीज इट्स कॉल्ड क्लास लिमिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज नो कंक्रीट बाउंड्रीज इट्स कॉल्ड एज क्लास लिमिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन देयर इज नो कंक्रीट बाउंड्रीज इट्स कॉल्ड एज क्लास लिमिट्स। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड, इसको क्लास इंटरवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल, व्हाइल एज द डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री इज कॉल्ड एज क्लास साइज, क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। तो आपने फैक्ट याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल, व्हाइल एज द डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री इज कॉल्ड एज क्लास साइज और क्लास लेंथ और क्लास विड्थ। उसके बाद हमें ओपन एंडेड क्लास एंड क्लोज एंडेड क्लास। तो आपने याद रखना इसमें ओपन एंडेड क्लास एंड ओपन एंडेड क्लासेस एंड क्लोज एंडेड क्लासेस। What is open ended class is when a class limit is missing either at lower end or at upper end, that is limits are not specified at both ends, it is called as open ended class। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। What is open ended class is when a class limit is missing either at the lower end or at the upper end, or the limits are not specified at both ends, the class is called as open ended class, while as when the limits are specified at both ends the class is called as closed end class। तो आपने क्वेश्चन याद रखना, व्हाट इज ओपन एंड क्लास, इसका व्हेन क्लास लिमिट इज मिसिंग। तो आपने व्हाट इज ओपन एंड क्लास, इसमें व्हेन, तो आपने व्हाट इज ओपन एंड क्लास, इसका व्हेन ए क्लास लिमिट इज मिसिंग आइदर एट लोअर एंड और एट अपर एंड, or the limits are not specified at both ends, the type of class is called open end class। सवाल बनता है what is open end class, इसका when a class limit is missing either at upper value, या तो आपने कहा what is open end class, इसका when a class limit is missing either at lower end or at upper end, or the limits are not specified at both the ends, the type of class is called open end class, while as when the limits are specified at both the ends, the type of class is called ओपन एंड क्लास। ये आपने याद रखना होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन एंड क्लास, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बिलो 20, दिस मीन्स यहाँ पे हमें लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना। इसी तरह से आपने याद रखना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंपाइलेशन एंड, ये आपने याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, ये आपने याद रखना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। पहला क्या है, रिपोसिटोरी। द टेबल्स टू शो डाटा इन ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड, इसका रिपोसिटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोसिटोरी। तो आपने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। पहला क्या है, रिपोसिटोरी। तो आपने रिपोसिटोरी, REPOSITORY, रिपोसिटोरी। द टेबल्स टू शो डाटा इन ऑर्डरली मैनर। तो आपने व्हाट इज रिपोसिटरी, इसका द टेबल्स टू शो डाटा इन ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड रिपोसिटोरी। तो आपने याद रखें रिपोसिटोरी, द टेबल्स टू शो डाटा इन ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड रिपोसिटोरी। उसके बाद है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, रो टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू कॉलम टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल। ठीक है ना, तो अपने याद रखने में रिपोसिटोरी किसको कहते हैं, टेबल्स टू शो डाटा इन ऑर्डरली मैनर। तो आपने याद रखें द ऑर्डरली मैनर ऑफ डाटा। तो आपने याद रखें द शोइंग ऑफ ऑर्डरली, तो आपने याद रखें
तो आपने याद रखना, व्हेन डाटा इज शोन इन एन ऑर्डरली मैनर इन टेबुलेशन इट इज कॉल्ड एज, इसका इसमें रिपोजिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डाटा इज शोन इन ऑर्डरली मैनर इन टेबुलेशन इट इज कॉल्ड एज, इसमें रिपोजिटरी। उसके बाद है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी मीन्स रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। बहुत मार्जिनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। दिस मीन्स मार्जिनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। उसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद है, तो आपने याद रखना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो आपने याद रखना, तो पहले आपने याद रखा व्हेन द डाटा इज शोन इन ए ऑर्डरली मैनर इन टेबुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने कहा इन टेबुलेशन व्हेन द डाटा इज शोन इन ऑर्डरली मैनर इट इज कॉल्ड एज रिपोजिटरी। द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रो टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल इज इक्वल टू कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन देयर इज वन वेरिएबल, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन देयर इज टू वेरिएबल। तो आपने याद रखना, the frequency distribution of one variable is called univariate frequency distribution. The distribution of two variable frequency distribution is called as bivariate frequency distribution. इसके साथ ही हमारा टेबुलेशन एंड होता है, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। खुदा हाफिज़।